Hello dear students, today we will continue with our chapter number 2, the First World War and the Russian Revolution. In last session we saw about the colonialism in Africa and Asia and Western Europe, how the Western European countries fought amongst them, how the European countries came to Asia and established a colony, how they entered in Africa and established their colony. Today we will see about that factors which are responsible for the First World War. So many factors are responsible for the First World War and some of them are given here. So the First World War was the heartbreaking and unforgettable events of the modern world, and many factors were responsible for this. The First World, as we know that the time era of First World War was 1914 to 19 1914 to 1918. So the First World War began on 1st August 1914. Now, as Germany had defeated France, as Germany has defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty. So Germany defeated France, and because of in Sedan War, and because of that France had to sign the Frankfurt Treaty. And according to this treaty, France has to pay a war fine, as well as they have to give its two provinces, Lorraine and Alaska, to Germany, and that's why it is considered that this Frankfurt Treaty has sowed the seeds of the First World War. तो यहाँ पे क्या है कि हमने देखा कि ये भाई ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जो दुनिया के इतिहास में कभी ना भुलाया जाने वाला और सबसे दुखद घटना है, और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1914 को हुई. अब सीडान वॉर जो हुआ, उस सीडान वॉर में जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ, और उसमें जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया और उसने फ्रांस को फोर्स किया कि वो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन करे जो 1871 में की गई. तो ये ट्रीटी, जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी थी, उसके अनुसार उसको क्या करना, फ्रांस को क्या करना था कि उसको वॉर फाइन मतलब दंड भरना था, जो फाइन बोलते हैं हम, ठीक है, वो भरना था. और उसके साथ उसको फ्रांस को अपने दो प्रोविंस, अपने दो विस्तार जो है लॉरेन और अलास्क, वो जर्मनी को देने थे. तो क्या हुआ, ठीक है, और इसीलिए यह कहा जाता है कि फ्रैंकफर्ट ट्रीटी जो है, ठीक है, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी जो है वो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार है. तो ये माना जाता है कि ये फ्रैंकफर्ट ट्रीटी जो साइन हुई, वहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीज रोपे गए. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द फैक्टर्स, एंड फर्स्ट ऑफ देम इज इकोनॉमिक फैक्टर. ना इकोनॉमिक फैक्टर्स मीन्स रिलेटेड मनी, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. Now, how the economic factors is responsible for the First World War. So, England had established its vast empire in Asia and Africa. As we know that they established colonies in Asia and Africa both. Mostly in Asia, they established the colonies in India and Africa. Understood? Now, what happened? So, it exploited its colonies economically and become rich. Due to the industrialization and swift colonization, Europe required huge quantity of raw material. In the last quarter of the 19th century, Germany had started the competition to produce the markets in Asia and Africa. Germany started supplying cheaper goods in comparison to England and France. The Afro-Asian markets, the England and France dominated, were thus broken up by Germany. Consequently, there was an intense economical competition between Germany and England. So, what is here? So, till in the end of 19th century, England had established their most of the colonies in Asia and Africa. So, as they establish their colonies in Asia and Africa, and from there they get lots of money, and economically they become rich. But in the 19th century, as the industrial revolution started, because of industrial revolution, now Europe required a huge quantity of raw material. And in the last quarter means in the last 25 years of the 19th century, Germany become a competitor of England.
So Germany has started competition to produce markets in Asia and Africa. Germany also wants to become rich. Germany also wants to dominate the markets of England and France. So what happened? So Germany had started supplying cheaper goods in the comparison of England and France. So here, by supplying cheaper goods in comparison of England and France, the Germany entered in Africa and Asian markets, and they dominated the markets of England and Africa. And from there, and because of this, England and Africa's markets were broken up, and in this way, there was a economic competition between Germany and England. तो यहाँ पे क्या है कि भाई 19th सेंचुरी में इंग्लैंड ने अफ्रीका और एशिया के कई देशों में अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश, अपना बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। अब उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ को इकोनॉमिकली, मतलब आर्थिक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अपने देश को रिच बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, लोगों का शोषण किया, वहाँ के लोगों का शोषण किया, ठीक है। और बिकॉज ऑफ, अब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, और उसकी वजह से यूरोप के जो देश थे उनको क्या थी कि रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल जो होता है, किसी भी वस्तु बनाने के लिए जो कच्चा माल की ज़रूरत होती है उसकी बहुत ज़रूरत पड़ रही थी, और इसकी वजह से वो अपने देश से, ठीक है, वो कच्चा माल भेजते थे या कच्चा माल वो निकास करते थे, आयात करते थे, ऐसा करते थे। अब जर्मनी जो है वो इनकी कंपटीशन में आ गया, ठीक है। तो जर्मनी जो है वो इनकी कंपटीशन में आ गया, और जर्मनी क्या करता था कि जर्मनी इंग्लैंड एंड फ्रांस जो अपना जो माल सामान बेचते थे वो थोड़े हाई रेट में बेचते थे, तो जर्मनी ने आके वो चीप पर, बहुत ही चीप रेट में वो बेचना शुरू किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जर्मनी और अफ्रीका के मार्केट टूटने लगे। अब जर्मनी ने अफ्रीका और एशिया के अंदर भी एंटर किया, ठीक है, एशिया और अफ्रीका के अंदर भी एंटर किया, और उसने इंग्लैंड और फ्रांस के मार्केट को डोमिनेट कर दिया, और इसीलिए, ठीक है, जर्मनी और इंग्लैंड के मार्केट टूट गए। और इस तरह हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कंपटीशन जो जर्मनी और इंग्लैंड के बीच हुआ, वहाँ से भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीज रोपे गए। द सेकंड फैक्टर इज मिलिटरिज्म. Military force was necessary and important for the competition that European nations got into. For expansion, England, France, Austria, Russia, etc. had begun expanding their military power, while in the countries like Japan, Italy, and Germany, compulsory military training had started. Production of weapons was increased under the pretext of self-defense. Thus, militarism got an impetus, and military competition added to economic competition created a serious atmosphere of war. So if you want to expand your area, if any nation, we are not talking about England or Japan or Russia, but as a nation, if you want to expand your area, if you want to expand your rule, understood, if you want to expand your power in other nations, you need military. So in this way, to expand the areas for the expansion, European nations need more and more military forces. So here England, France, Austria and Russia had begun to expanding their military power, while like on other side, the countries like Japan, Italy and Germany made a compulsory military training for all. Means you have every child, every woman, every woman, every man has to take a compulsory military training. In this way, they started to what we can say, they started to increase their military power, and because of military, they started to expand their military power, they started to expand their military we can say their soldiers. Now because of military they need more weapons, so they also expand, or they also produce the military weapons
and they increase under the pretext of self defense. So यहाँ पे क्या है कि भाई किसी भी राज्य है, किसी भी देश है, उसको अगर अपना एरिया एक्सपांड करना है, अपना राज एक्सपांड करना, राज बढ़ाना है, तो उसको मिलिट्री की ज़रूरत पड़ती है, सैन्य की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी क्या किया, अपना एरिया बढ़ाने के लिए उन्होंने मिलिट्री का एक्सपांड करना शुरू किया। यहाँ इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रसिया ने भी क्या किया, उन्होंने अपना मिलिट्री पावर बढ़ाया। ठीक है, उनके सामने, और दूसरी तरफ जापान, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने तो सबके लिए मिलिट्री पावर जो है, मिलिट्री ट्रेनिंग जो है कंपलसरी कर दी है। अब मिलिट्री बढ़ रही थी, इसलिए उनको हथियारों की भी ज़रूरत पड़ रही थी। तो उन्होंने ये बचाव करते हुए कि भाई वो हमारे देश पे कभी भी हमला हो सकता है, हमारे देश पे कोई देश जो है हमला करेगा तो हमें अपने बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बचाव का तरीका अपना कर वो हर देश ने हथियारों का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिलिटरिज्म है वो भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। द थर्ड फैक्टर इज ग्रुपिज्म मीन्स सीक्रेट ट्रीटीज। Now groupism and secret treaties played a major role in the First World War. The World War divided into two groups before the First World War. On one side, the group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey, while on the other side was the group of England, France, Russia and Japan. A feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear and hatred evolved between the groups, which was important factor for the First World War. Now groupism and secret treaties also played a major role it is also a responsible factor for the First World War. Now the whole world was divided into two groups. On one side there was a group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey, while other side, in second group, there was a country of England, France, Russia and Japan. Now amongst these countries there was a feeling of jealousy, enmity, mistrust, feeling hatred, and because of this we can say that this is the important factor of the First World War. अब ग्रुपिज्म और सीक्रेट ट्रीटीज जो है वो क्या है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। अब पूरी जो दुनिया थी वो दो ग्रुप में बट गई थी। उसमें एक ग्रुप था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड टर्की जैसे देश थे, जब दूसरी ओर जो था वहाँ पे कौन था, जब दूसरा देश था उसकी तरफ था इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान। अब ये जो ग्रुप थे, ये जो देश थे, उनके बीच एक दूसरे के प्रति जेलसी, दुश्मनी, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होना, डर है ना, एक दूसरे के प्रति नफरत, और ये जो ये दोनों ग्रुप के बीच था, ठीक है, वो ही हम मान सकते हैं कि ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। नाउ द फोर्थ फैक्टर which was responsible for the first world war is like feeling of fierce nationalism. The independence of Belgium and Greece and the unification of the Germany and Italy were the result of nationalism. But later the feeling of nationalism took an extreme and narrow form in Europe. Economic jealousies, competitions and colonialism in Europe had increased so much that the national interests of each other began to clash. Leading European nations began teaching extreme and destructive nationalism to its people. Love for own nation and hatred for other nations were encouraged. The German chief Kaiser William was the other originator of the nationalism and colonialism. He was ambitious and believed in the world leadership. He wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power. The feeling of war spread across other nations as in Germany, and this had resulted in the First World War. अब यहाँ पे क्या है कि the independent Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of the
तो यहाँ पे जो नेशनलिज्म है, ठीक है, उसके उदाहरण दिया गया है कि जिसमें बेल्जियम का जो आज़ाद हुआ, ग्रीस जो आज़ाद हुआ, और यूनिफिकेशन मतलब इटली और जर्मनी, ये दोनों के बीच में जो संबंध बंधे, ठीक है, ये जो है नेशनलिज्म के सबसे बड़े उदाहरण है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, ठीक है, वो यूरोप में, ठीक है, वो यूरोप में बहुत संकुचित मायने में मानी गई, क्योंकि इकोनॉमिक जेलसिस, आर्थिक जेलसिस, मतलब भाई ये देश बहुत तरक्की कर रहा है, हमारा देश इतनी तरक्की नहीं कर रहा, ये देश के पास बहुत पैसे है, ये देश के लोग बहुत पैसे वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। कॉम्पिटिशन्स एंड कॉलोनियलिज्म, कॉम्पिटिशन, हर प्रकार की कॉम्पिटिशन, जैसे कि मिलिट्री रिलेटेड कॉम्पिटिशन, और वी कैन से दैट कॉम्पिटिशन रिलेटेड टू बिकम रिच नेशन, द कॉम्पिटिशन टू हैव लॉट्स ऑफ वेपन्स। इन दिस वे कॉलोनियलिज्म मीन्स कि कौन से देश के पास ज़्यादातर कॉलोनीज़ है, तो ये कॉलोनियलिज्म है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो यूरोप में बढ़ती गई, और इसकी वजह से क्या हुआ कि हर देश को अपने देश के प्रति गर्व होने लगा, हर देश को अपने देश में क्या करना था, हर देश को अपने देश के प्रति, और यहाँ से देश के बीच जो क्लैशेस होने थे वो क्लैशेस स्टार्ट हो गए। यूरोपियन नेशंस जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पढ़ाना शुरू किया कि हमारा देश जो है अच्छा है, ठीक है। उन्होंने अपने देश की अपने देश की देशभक्ति के बारे में सोचा, और उन्होंने लोगों को ये सीख दी कि हमें अपने ही देश को प्रेम करना चाहिए, दूसरे देश के लोगों को क्या करना चाहिए, नफ़रत करनी चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो उन लोगों को सिखाई गई। तो और उसके अलावा जो जर्मन चीफ था काइजर विलियम, जिसको ओरिजिनेटर माना जाता है नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म का, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा ओवर एम्बिशियस था, और वो वर्ल्ड लीडरशिप, मतलब वो ऐसा मानता था कि मैं ही पूरी दुनिया को चलाऊँ, मेरा देश ही पूरी दुनिया में सुप्रीम हो, मेरा देश ही लीडर देश हो। और अकॉर्डिंग टू वो ये भी चाहता था कि वो अपने मिलिट्री पावर का यूज़ करके, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश बने, दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बने। और हम ये सब देख के हम ये भी कह सकते हैं कि फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ना फिफ्थ फैक्टर इज द रोल ऑफ न्यूज़पेपर। The newspaper of European nations aroused so much of hatred among people with their mutual, derogatory, provocative, and exaggerated and false write-ups by spitting venom against rival nations that rulers of respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई न्यूज़पेपर के जरिए, ठीक है, जो यूरोपियन नेशंस के यूरोपियन देश थे वो अपने आप मतलब अंदर वो लड़ रहे थे। कैसे लड़ रहे थे, ठीक है, तो उनके बीच में जो म्यूचुअलिटी होनी चाहिए वो नहीं थी, ठीक है, उनके बीच में जो संबंध, जो ट्रीटी रिलेटेड संबंध होने चाहिए वो नहीं थे। हर देश एक दूसरे के प्रति एक्सग्रेटेड थे, प्रोवोकेटिव थे, ठीक है, और ये देश है वो दूसरे देश के बारे में गलत लिखता था, ठीक है, मतलब वो जहर उगलते थे कि भाई ये देश तो ऐसा है, ये देश तो ऐसा है, ये देश तो ऐसा है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टेकिंग अ रिसेंट एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड चाइना, सो चाइना always spitting a venom about India in their news channels. So because of that, what happened? All the Chinese people have feeling that all the Indians are bad. All the Indians are bad. Indians wants to defeat us. Indians want to defeat us. They want to control our areas. So in this way, उस समय भी क्या होता था कि भाई एक देश दूसरे देश के प्रति जहर उगलता था, और जो अपने देश थे वो देश के प्रति लोगों के मन में नफरत पैदा करते थे, ठीक है। और वो तो ये भी एफर्ट करते थे कि लोगों के बीच में शांति बनी ना रहे, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे रहे। तो ये रोल ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर जो है वो भी
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाता है। द लास्ट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज़ फिलोसॉफी अबाउट वॉर। द पॉलिसी ऑफ वॉर इज़ वेलफेयर टूक रूट इन यूरोप। मतलब ये जो पॉलिसी वॉर इज़ वेलफेयर, मतलब वॉर जो है, युद्ध है, वही एक रास्ता है। वॉर है, ठीक है, युद्ध जो हम कर रहे हैं, और युद्ध जो होगा उससे ही हमारा देश का कल्याण होगा, उससे ही हम लोगों का कल्याण होगा। ऐसी जो चीज़ें थी वो यूरोप के देशों के लोगों में, और यूरोप के देश के लोग जो थे उसके माइंड में घुस चुकी थी, मतलब उनके माइंड में ये बात घर कर गई थी। और यहाँ से वॉर ऑफ वेलफेयर टूक रूट इन यूरोप। द जर्मन राइटर Trotsky published the maxims like only the mighty deserves to live and war alone is the national need. Then Nietzsche, the German writer, expressed war as a sacred work. तो एक जर्मन राइटर थे ट्रॉस्की, उन्होंने पब्लिश किया कि वही जिंदा रह सकता है जो दुनिया में सबसे सुप्रीम है, जो दुनिया में सबसे बहादुर है। और उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हर देश को चाहिए। युद्ध ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जो हर देश की ज़रूरियात है। नेस्के जो है, जो जर्मन राइटर थे, उन्होंने तो युद्ध को एक पवित्र कार्य, मतलब एक होली वर्क तक कह डाला था। अब सही मायने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कहाँ हुई, दैट वी विल सी इन दिस लास्ट पैराग्राफ। द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वर असैसिनेटेड बाय बीइंग शॉट बाय द मेंबर ऑफ सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड। तो द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया मतलब जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, और उनकी वाइफ जब एक जुलूस में निकले थे, तब सर्बियन टेररिस्ट ग्रुप जो था ब्लैक हैंड, उनके द्वारा उनका वध कर दिया गया। वध कर दिया गया मतलब उनको शॉट कर दिया, गन से उनको उड़ा दिया गया। तो ऑस्ट्रिया ब्लेम्ड सर्बिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट एंड गेव एन अल्टीमेटम टू हैंड ओवर द कल्प्रिट टू ऑस्ट्रिया विद इन 48 आवर्स। अब क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी का हत्या कर दी गई, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया चुप बैठने वालों में से नहीं था, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया जो था उस पर ब्लेम कर दिया, मतलब उसने उस पर ऊपर दोष डाला कि आपके देश के जो लोग थे, आपके देश के जो ये ब्लैक हैंड टेररिस्ट ग्रुप जो था, उन्होंने हमारे राजकुमार और उनकी पत्नी की हत्या की है। और वो ऑस्ट्रिया ब्लेम तो कर रही थी, वो श्योर थी कि सर्बिया का जो ब्लैक हैंड टेररिस्ट ग्रुप है वो ही ये कार्य में इन्वॉल्वमेंट है। और उन्होंने तो सर्बिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि जो भी गुनहगार है, जिन्होंने भी ऑस्ट्रिया और उनकी पत्नी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी को मारा है, वो जो अपराधी है वो ऑस्ट्रिया को 48 आवर्स के अंदर क्या कर दे, सौंप दे। तो सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन दिस। तो सर्बिया ने ये बात क्या की, इग्नोर की, मतलब उसने सर्बिया ने ऑस्ट्रिया को हल्के में ले लिया, ठीक है, हल्के में लिया, मतलब ये क्या जो होगा देखा जाएगा। तो विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बीगन विथ दिस। तो अब सर्बिया ने इग्नोर किया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया को बुरा लगा कि भाई हम हमारे राजकुमार और उनकी पत्नी के हत्यारे को सौंपने की बात करें, दूसरा कुछ तो मांग रहे नहीं है। तो ये जो थे और सर्बिया वाले थे, उन्होंने उनको इग्नोर किया, तो इसकी वजह से ऑस्ट्रिया को गुस्सा आया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया को गुस्सा आया तो ऑस्ट्रिया ने कुछ भी कहे बिना, कुछ भी सुने बिना उन्होंने डायरेक्ट सर्बिया पे क्या कर दिया, हमला कर दिया और वॉर का डिक्लेरेशन कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि ये जो इंसिडेंस हुआ कि प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया ने उसकी वाइफ की जो हत्या की गई और यहाँ से जो युद्ध की शुरुआत हुई, तो ये जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी what was the result of first world war. Till that, have a nice day, take care.